نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. تھوڑے سے کلاس کے اصول ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اسی جگہ پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو جب تک تھوڑا بہت ہم اس کا خیال نہ رکھے تب تک مشکل ہو جاتا ہے پڑھانے والے کے لیے بھی اور پڑھنے والوں کے لیے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو میوٹ رکھوں گی. جب ضرورت پڑے گی تو آپ کو انمیوٹ کیا جائے گا، جب آپ کو کہا جائے گا انمیوٹ کرنے کے لیے تو پلیز باقی سب بہنیں میوٹ ہیں اور ایک دو بہنیں ہیں جو انمیوٹ ہیں تو اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، یا پھر میں سبھی کو کر دیتی ہوں. دوسری بات یہ کہ کلاس میں یعنی کہ جب آپ ایسی کلاس ہو جو کہ قرآن کی جس میں شروع سے ہی امپورٹنٹ انفارمیشن دی جا رہی ہو، اس میں ٹائم کے ساتھ آنا ضروری ہے، کیونکہ ٹائم کی پابندی جو ہے وہی پھر انسان کے بہتر بناتی ہے، اس کی تعلیم میں اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اسے ایک مائنڈ اس کا بنا ہوتا ہے کہ میں نے پوری کلاس لی ہے. اگر تھوڑی لو تو یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا، پتہ نہیں میں نے کیا چھوڑ دیا، میں نے کیا پڑھ لیا تھا. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے پھر ایسا نا. لیکن اگر آپ پھر شروع سے آپ کو پتا ہے کہ کیا پڑھایا گیا ہے اور کیا میں نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے لیے ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی تو آپ بعد میں سن سکتے ہیں. جب آپ سن رہے ہوں تب آپ نے لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم لکھتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دھیان بٹ جاتا ہے، پھر ہم سن نہیں پاتے جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بولنے والا بول رہا ہوتا ہے یا کوئی اور پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو 100% لے نہیں سکتے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا تھا شروع میں ہی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھنے لگے تھے قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب وہی ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، خاموش رہو، یعنی خاموشی اختیار کرو، غور سے سنو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ باتیں ڈال دیں گے اور پڑھا دیں گے. ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں گے نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ 100% لینے کے لیے ہمیں سننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور غور و فکر کی ضرورت ہے. جب کچھ شیئر ہو رہا ہو اس کے اوپر دیکھنے کی اور سب کچھ، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو مشکل ہوتا ہے. تھوڑی سی ضروری باتیں ہیں جو کہ کرنی ہونی چاہیے کلاس کے شروع میں، تاکہ سب لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ یعنی کہ بار بار یہ نہ ہو کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ دوسرے بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کسی کی میں نے ویڈیو نہیں آپ کی آن ہوگی، ویڈیو جو ہے وہ آپ کی بند ہی رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہم سب کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے ہی تجوید کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے تجوید، تو کیوں اس کو لیے پڑھنا ضروری ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ باقی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جانور بھی ہیں، باقی بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جنات کی ہدایت اور انسانوں کی، خاص کر انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ ان ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، جنہوں نے ہمیں رہنمائی ہماری کی، اور ان کی طرف پھر جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی انہوں نے آگے پہنچائی۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ اور سب کچھ، قرآن کیسے اترا، دوسری پہلی کتابیں کیسی اتری، صحیفے کیسے اترے، تو یہ سب چیزیں لینے کے لیے رسولوں نے خاموشی اختیار کی، رسولوں نے ایک یعنی کہ ماحول وہ ایسا تھا ان کا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کتنے مہینے پہلے غار میں جاتے رہے تاکہ وہ ایک نا خاموشی ہو، ایک ماحول ایسا ہو جس میں انسان کنسنٹریٹ کر سکے۔ تو اپنے چاروں طرف اگر آپ کے کچھ ڈسٹریکشن ہوتی ہیں تو ان کو دور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ پوری طرح پھر لے نہیں سکیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ بہنوں کے پاس اب بچے ہوں گے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اب ماؤں کے پاس ہی ہوں گے جب چھٹیاں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ ان کو ادھر ادھر دے دیا جائے کھیلنے کے لیے، کھلونے وغیرہ، تو وہ مصروف ہو جائے اور آپ کنسنٹریٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ حق یہی ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، قرآن کا حق جو ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کو ایسے ہی ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے جیسا کہ یہ اترا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے عربی زبان میں اترا اور ہم ادنی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس کے اوپر جو محنت کرنی ہے وہ ضروری ہے، وہ یعنی حق ہے قرآن کا، وہ حق ادا نہ کرتے ہوئے، قرآن کو تو پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا حق نہیں ادا ہوتا جو کہ اس کا اصل حق ہوتا ہے، جو اسے ٹھیک پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اسے تفصیل کے ساتھ پڑھنا، تو یہ اب آتا ہے جب انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کوشش کرنے بیٹھے ہیں تو اچھی طرح کوشش کریں۔ یہ وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ نے دیا ہے، تو اسی کے لیے ہی اس کو رکھیں، بیچ میں جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ آپ بیٹھ کے پورے دھیان سے سنیں، ابھی لکھنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ لکھنے کے لیے آپ بعد میں آڈیو بھی سن سکتے ہیں، اور اگر دو بات لکھنی پڑی وہ میں بتا بھی سکتی ہوں آپ کو، لیٹر آن لکھیں گے، لیکن ابھی لکھنے والی چیز نہیں، ابھی آپ نے غور سے سننا ہے۔ قرآن کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ 130 آیت نمبر۔ تو یہ بہت ضروری ہے، قرآن کا یہ حق ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی تلاوت صحیح کی جائے، اس کے بنیادی احکامات کو جانا جائے، اس کی تجوید کو جانا جائے۔ تجوید سے قرآن پڑھنا فرض عین ہے، میں ابھی بتاتی ہوں کہ تجوید کیا چیز ہے، اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھے۔ اس کے علاوہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانے میں اس کی تجوید سیکھنا بھی شامل ہے، کیونکہ اگر ہم پہنچانے لگتے ہیں اور ہماری اپنی ہی غلطیاں ہیں، اپنی تجوید ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ماہر قرآن ہمارے سامنے آ جائے جو سن رہا ہو، جو سیکھنے آ جائے یا دیکھنے آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو
क्या होता है फिर कि जब पढ़ाने वाला ये पढ़ा रहा हो गलतियों के साथ, तो वो फिर जल्दी पुट आउट हो जाता है। ये इसको तो खुद ही पढ़ने का पता नहीं है, तो ये आगे क्या देगी। तो ये हम दूसरों के लिए नहीं सीख रहे, सीख तो हम अपने लिए रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने रब के काम को ऐसे लेना है जैसे वो उतरी है। इंशाअल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मिन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इंशाअल्लाह ताला ये सीखने और सिखाने का सीखने का मरहला अभी है हमारा, और सिखाने का भी इंशाअल्लाह होगा, क्योंकि हर इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हर फर्द दाई है। हर फर्द के ऊपर अल्लाह ने ये जिम्मेदारी डाली है कि वो आगे पहुंचाए कुरान की, चाहे एक आयत ही क्यों नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात ही क्यों नहीं है, पहुंचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन पहले अपने ऊपर लेना है इंशाअल्लाह ताला। अब हम आते हैं तजवीद की तरफ। तजवीद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजवीद के लग़वी मानी है उम्दा करना, अच्छा करना, खूबसूरती से पढ़ना है? कुरान को उम्दगी और खूबसूरती के साथ पढ़ना। इसकी अहमियत और इसकी यानी कि इसकी अहमियत को जानना कुरान की को, और इसकी तिलावत ठीक तरीके से करना हमारे लिए जरूरी है। यानी कि हर हर्फ को उसके मखारिज से तमाम सिफात के साथ बिला तकल्लुफ अदा करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत उम्दगी और खुशहाली से कुरान की तिलावत किया करते थे, और सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने भी ऐसे ही सीखा और आगे सिखाया। कुरान का हुस्न भी यही है कि उसकी तिलावत का हक अदा किया जाए जैसा कि उसके पढ़ने का हक है, और वो अरबों के लहजे में पढ़ा जाए, क्योंकि अरबों का लहजा अरबी है। जाहिर है जिस तरह उनका लहजा है, हमारा हम अरबी बोलने की कोशिश भी करें तो हमारे लहजे से पता चल जाता है कि हम अजमी हैं, हम अरबी नहीं है। तो कोशिश हमने करनी है कि अरबों के लहजे से कुरान को हम पढ़े इंशाअल्लाह ताला। तो इसी को सीखा जाए, इसी के लिए कोशिश की जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला जब अल्लाह ताला ने दिया हमें कुरान, तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने किस लिए दिया, ताकि इसके ऊपर अमल हो सके, ताकि इसको पता कर सके कि क्या है इसमें। जब हमें पता ही नहीं होगा कि इसमें पहले तो पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है, दूसरा अगर पढ़ भी लिया, पढ़ते पढ़ लिया, लेकिन उसका पता नहीं है कि उसको उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या उसमें फरमाया है, तो फिर हम अमल कैसे करेंगे। अब पता ही नहीं है क्या फरमाया है, तो आगे कैसे पहुंचाएंगे। तो इसलिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। तो ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीद को पढ़ने की दो वजूहात बताई हैं, इसको यानी कि तजवीद की, कि एक तो है इसके मुखारिज, यानी कि कहाँ से जो निकलते हैं हरूफ, उनके घर, उनकी जगह निकलने की, और उनकी सिफात में महारत हासिल करना। दूसरा क्या है कि जो वक़्फ़ है उनकी उनकी तालीम लेना, उनका पता करना कि कैसे हम वक़्फ़ करेंगे। वक़्फ़ किया जा सकता है आयत के दरमियान में भी। आयत के कई दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ने के बाद भी आपकी कुछ हो जाता है, आपको वक़्फ़ करना पड़ता है, मुझे भी आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो आपको वक़्फ़ करना पड़ता है, और वक़्फ़ का पता होना चाहिए कि कैसे हमने जहाँ पे ठहरना है। तो जब हम जानेंगे कि कैसे ठहरना है, अगर हम शुरू में ठहर रहे हैं, हम आखिर में ठहर रहे हैं, हम दरमियान में ठहर रहे हैं, हमें ठहरना पड़ा है या कुछ हो सकता है, या उस्ताद ने कहा है कि जहाँ रुक जाओ, तो हमें ठहरने के लिए जरूरत पड़ी है, तो हमें पता हो कि जहाँ पे क्या करके ठहरना है। असूल के साथ ठहरना होता है, बिला असूल नहीं ठहरना, क्योंकि वो मजबूरी होती है कि एकदम इंसान की आवाज रुक जाए, अल्लाह न करे कि वो
जाने लगे दुनिया से, जाओ उसकी आवाज किसी और वजह से रुक जाए, वो और बात होती है। वो उसमें उसका कोई यानी इख्तियार नहीं होता। तो इसकी फजीलत क्या है? यानी कि इस कुरान को पहले तो हम पढ़ते हैं ना सिर्फ सवाब के लिए, कि हम सवाब हमारे बुजुर्गों को पहुंच जाए और हम हमारे लिए अजर लिखा जाए। क्यों नहीं? इसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम जो है वो एक एक हर्फ है, एक लफ्ज है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अलिफ एक है और लाम एक है और मीम एक है और हर एक के बदले 10 है, यानी कि 10 नेकियों का अजर मिलता है। तो बेशक इसका अजर है, बाइसे सवाब है, पढ़ना इसका बाइसे बरकत है। और जो पढ़ता है उसका सदका जारिया जो है जाता है उसके वालिदैन को भी, साथीज़ किराम को भी। लेकिन क्या वो पढ़ सीख रहा है? ये तालीम हासिल करना जरूरी है। और कुरान को तजवीद और तरतील के खिलाफ पढ़ना जायज नहीं है। ये एक तो रज़ाए इलाही की ताज़रिया है, और दूसरा ये है कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया है। इसकी फजीलत में कलाम रब्बानी है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक का जरिया है। और ये यानी कि फजीलत क्या है? ये इसका कलाम है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, कलाम रब्बानी है और इसके साथ ताल्लुक का जरिया है। और ये इल्म तमाम आलूम से अफजल और आला है। आज आप सोचेंगे कि मैं बोले जा रही हूँ और कुछ भी नहीं कह रहे। आज आपने थोड़ा सा सुनना है, क्योंकि अगर मैं बिला तकल्लुफ आपको कायदे पे बैठा दूं लेकिन आपको पता ही ना हो वही जो कुछ आप लेने आए थे वो तो मिला ही नहीं, आप तो खाली हाथ चले गए। तो थोड़ा सा इसको समझ लें तो इतना। तो इसके इसकी समझ क्यों जरूरी है? तो ये सबसे अफसल व आला इल्म है, कलाम है। इसके हासिल करने के लिए सही उस्ताद को ढूंढना पड़ता है। अल्लाह ताला हमें वो बनाए भी और हमें वो दिए उस्ताद जिनके सामने बैठकर हम अपनी गलतियां ठीक करते रहें। और हर इंसान को सारी जिंदगी अपनी गलतियां ठीक करते रहना चाहिए। उसको हर थोड़ी देर बाद गलतियां पड़ने लगती हैं अगर वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही होती है हमको। और बेहतर तरीका तो ये होता है कि उस्ताद के सामने बैठकर सीखा जाए। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई और सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, बैठकर सीखना। लेकिन ये है हमारी मजबूरी है, हम दूर दराज से हैं और अल्लाह ताला ने ये हमें सहूलत मुयस्सर की है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम आते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ते ठीक तरीके से, गलतियों से पढ़ते हैं, तो कौन कौन सी गलतियां और कैसी इनकी साम थोड़ी सी। तो लहन कहते हैं गलती को। लहन बड़ी गलती भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो लहन और जो है उसकी दो किस्में हैं। ये हर्फ की तब्दीली, हरकत की तब्दीली, हर्फ को कम कर देना या लंबा कर देना, ये लहन में आ जाता है। यानी कि लहन की फिर तारीफ अगर हम देखते हैं तो तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ने को लहन कहते हैं। तलफ़्फ़ुज़ की गलती करते हैं जब, और मायने पर गौर फिक्र नहीं करते, तो सॉरी तलफ़्फ़ुज़ की गलती करते हैं उस पर गौर फिक्र नहीं करते तो मायने पे असर पड़ सकता है, क्योंकि मायने बदल सकते हैं उसके। जैसे हम पढ़ते रहते हैं, कोई कितनी बार हम दिन में पढ़ते हैं, कम से कम 17 टाइम अन अन अनता अन अनता, ठीक है? और इसमें हम अनामता पढ़ दें तो क्या है, साइन की गलती कर गए है ना, हमजा पढ़ गए, तो इसकी हरकत बदल देने से इसके मायने भी बदल जाते हैं। और इसका लफ्ज हर्फ बदल देने से इसके मायने भी बदल जाते हैं, इसकी हरकत कई दफा बदल देने से इसके मायने भी बदल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ
कल्बुन और कल्बुन, कल्बुन, कल्ब दिल और कल्ब, यानी कि इतना बदल जाता है, फर्क पड़ जाता है ना कि बिल्कुल। और अदा अदाबुन अलीमुन, और अगर मैं आलीम पढ़ दूं वहां पे तो ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, इनको ठीक करने की। ये अल्हम्दुलिल्लाह आप जहाँ पे बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको चुना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। जो आप लेने बैठे हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, जो कि मुझ जैसी को चुन के आप आए हैं और मेरी इतनी देर से सुन रहे हैं बातें। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की करम नवाजी, अल्लाह की करम नवाजी, और आप लोगों की ये एक चाहत है कि आपने कुरान के को चाहा ठीक करने की। और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक अता फरमाए कि आपको मैं दे सकूं। और आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अख़ज़ करने की, उसे लेने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। हम इसकी जो गलतियां हैं, एक तो बड़ी गलतियां होती हैं, ये जो हरूफ को तब्दील कर देना होता है। जैसे हम पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरी हा पढ़ दी आंखों वाली, वहां पे गड़बड़ हो गई। तो ये चीजें जो है हमें देखना है कि क्या हम कर रहे हैं, जहाँ पे गलती तो नहीं कर रहे। आया मैं ये ठीक पढ़ रही हूँ, बेशक आप चंद आयतें ही पढ़े रोजाना, लेकिन बहुत आगे आगे जल्दी जल्दी पढ़ के सिपारे खत्म करने की और सूरतें खत्म करने की कोशिश में आगे बढ़ना जो है, और गलतियों पे गलतियां किए जाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो लहने जली जो है, एक है लहने जली, दूसरी है लहने खफी। लहने जली जो है, अगर इसमें गलती की जाए तो ये हराम के दर्जे में आ जाती है। तो इसके लिए नावाकिफ को चाहिए कि वो इसका इल्म हासिल कर ले। अगर वो उस पर कादिर ना हो, उसे ना आता हो, तो उसे चाहिए कि सिर्फ वो इतना हिस्सा ठीक कर ले कि जितना उसको कुरान पढ़ना पड़ता है नमाज में। और क्योंकि ये नावाकिफ होना जो है, कादिर ना होना, यानी कि कोई बिल्कुल इतना बीमार है, उसके उससे बैठा भी नहीं जाता और सब कुछ, या इतनी देर वो नहीं कुछ कर सकता, कुछ भी हो सकता है, कोई शरई मजबूरी है, कोई उसकी जुबान नहीं, दिमाग नहीं ऐसा काम करता, तो वो उतना हिस्सा कर ले ठीक, बार बार ठीक करवाता रहे दूसरों को सुना सुना कर, ताकि उसकी नमाज ठीक पढ़ी जाए। लेकिन बाकी लोग जो है, वो उनका ये जानना जरूरी है और इसका इल्म हासिल करना जरूरी है। क्योंकि अगर वो जो ठीक नहीं पढ़ रहा, वो बड़ी महफिल में कुरान की तिलावत कर रहा है, तो उसको, उसकी गलतियां बहुत है, उसको नहीं करनी चाहिए, उसकी ये तिलावत उसको नहीं करनी चाहिए कुरान की, अगर उसकी बहुत ज्यादा गलतियां हैं। और हाँ, अगर वो क्लास में तिलावत कर रही है बहन, तो क्लास में क्योंकि उस्ताद मौजूद होता है, तो वो गलती निकाल सकता है, फिर वो उनकी आवाज में तिलावत करती है तो उसकी गलतियां निकल जाएंगी। उसे करनी चाहिए उनकी आवाज में। कोई आपके पास कोई ऐसा शख्स बैठा है जो कि गलतियां आपकी निकाल सकता है, तो फिर आप उसको उसको बता दें कि मैंने आपको अपना कुरान सुनाना है, तो गलतियां निकाल दें, वो जरूर निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये जो लहनी खफी है, उसका हमें पता नहीं चलता, वो सिर्फ वो ही जान सकते हैं जो इसके माहिर होते हैं, जो इसको, इस इल्म को जानते होते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपने ये गलती की है, आपको फौरन खुद ब खुद पता नहीं चलता। तो इसमें ये लहन खफी जो है, ये मकरूह भी है और नापसंदीदा भी है। तो लहन खफी जो है, इसमें एक तो होता है इदगाम ना करना, गुना ना करना, यानी कि खूबसूरती कुरान की नहीं फिर आती अगर इसमें ख्याल ना रखा जाए। या फिर ये भी है कि रा जो है, रा में ज्यादा तकरार कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए उसको, यानी कि तकरार होता है लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कर दिया जाए। तो पेश है उसको, यानी जिसको दम्मा कहते हैं, उसको पेश को जबर और पेश के दरमियान पढ़ दिया जाए। इसी तरह
जो है इसके लिए होंठों को गोल ना किया जाए और थोड़ा सा उनको बाहर ना निकाला जाए, पूरी जनी के पूरी तरह ना किया जाए। वो अलीफ वो जबर जनी फतह और पेश दम्मा के दरमियान में आप फिर पढ़ते हैं। अगर ऐसा करते हैं पेश और पेश को मजहूल जिसको हम कहते हैं जुहल से पढ़ते हैं, वो फिर पेश और जबर के दरमियान में आप पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा करने से परहेज करना है, हमने उसको ठीक करना है। पेश को सही तरीके से अदा करने के लिए ये जरूरी है कि आप होंठ गोल करें तरह और थोड़े से बाहर निकलते हैं। और मद लेटर के लिए मद वाली वाव के लिए जब आप करेंगे तो वो ज्यादा बाहर थोड़े से निकलेंगे, ज्यादा बाहर निकलेंगे। तो ये गलती उस वक्त वाज़ह होती है जब पेश वाले हर्फ के बाद जज़म आ जाए, तो फिर फौरन पता चल जाता है कि जहाँ पे इन्होंने गलती की है और बताने वाला उसी वक्त बता देता है। तो हमने भी करना है इंशाल्लाह ताला। तो अभी मैं आप आपने प्लीज जब भी आए माइक बंद कर दिया करे। मैंने अभी सभी को म्यूट कर दिया है, लेकिन जो बहन नहीं आती हैं वो अपने माइक उसी वक्त म्यूट करते हैं, क्योंकि आप लोगों के शोर जो है वो डिस्टर्ब करते हैं फिर इंशाल्लाह ताला। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं पहले पता करना। इससे पहले हम कायदा तो हम पढ़ चुके हैं ना, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, कायदा हम पढ़ चुके हैं। कायदे में हमने ये देखना है कि ये चीजें जो आ रही हैं इनको हमने कैसे करना है। तो इनका पहले ही पता कर लेना बहुत जरूरी है कि किस तरह, जैसे हम जब जेर को मजहूल पढ़ते हैं, जेर को कैसे पढ़ते हैं, बे बे बाजिर बी को बे बे। ये हम अलीफ सॉरी अलीफ में बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे आता है जबर और जेर के दरमियान में हम पढ़ रहे होते हैं, जबर और जेर के दरमियान में। तो ये एक ही लफ्ज पढ़ा जाता है कुरान में, माजरेहा वहां पे माला होता है, वहां पे पढ़ा जाता है वहां पे यानी कि अलिफ और या के दरमियान में वो पढ़ा जा रहा होता है। तो इस तरह जैसे जबर और जेर के दरमियान में, तो फिर आप वहां पे इजाजत है, वरना इजाजत नहीं है। और हमारे लोग आम ही इसको मजहूल पढ़ते हैं। जेर और पेच का मजहूल बहुत आम है हमारे लोगों में। तो इसको ठीक करना है। हरूफ लीन जो है, जब हम लीन लेटर करते हैं तो उसको लई कहने की बजाय लै कह देते हैं, लै लै। तो ऐसी गलतियां जो है उनसे हमने बचने के लिए अपने आप को ठीक यानी कि ठीक तरीके से पढ़ने पर लाना है इंशाल्लाह ताला। अब हम अमाम अहमद जो है ये वो अपनी नज़्मुल मुफीद में कहते हैं, उन्होंने नज़म पूरी तजवीद के ऊपर बनाई है और उन्होंने पूरी की पूरी तजवीद नज़म में ही बता दी है। तो इसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि कोई दम्मा जो होता है यानी कोई पेश जो होती है मुकम्मल नहीं होती जब तक कि दोनों होंठों को मुकम्मल तौर पर गोल ना किया जाए। तो जब तक वो गोल नहीं होते हमारी, तो वो कंप्लीट नहीं होती पेश। अब हम आते हैं इंशाल्लाह ताला, आपके सामने स्क्रीन शेयर है, इसको देखते हैं कि तजवीद की तरफ। ठीक है, तजवीद में हम क्या सीखते हैं? एक तो तजवीद में हम सीखते हैं मुखारिजुल हुरूफ और हम सीखते हैं सिफातुल हुरूफ। तरतील में हम सीखते हैं कि उसमें खूबसूरती कैसे लानी है और उसको यानी कि इस तरीके से, जैसे जो तनवीन के रूल हैं उनको अदा करने के लिए क्या हम ठीक उनको पढ़ ठीक रहे हैं, ठीक अदा कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बहुत लंबा मैं इसका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि पहले ही मैं ही बोले जा रही हूँ। आज मेरा ख्याल है मैं ही बोलूंगी।
आपको टाइम बाद में दिया जाएगा, लेकिन ये है कि आज आपने देखना है अच्छी तरह और सुनना है। ये बहुत ज़्यादा लंबी बहस करने के बगैर मैं आपको यहाँ पे तजवीज़ पे ही ले जाती हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये हमारे तजवीज़ के जो हरूफ हैं, ये एक तो पहले मैं बताऊँ आपको कि हम सबको पता है कि 29 29 हरूफ हैं हमारी अरबी, ना उर्दू के तो ज़्यादा है, लेकिन अरबी के हमारे 29 हैं। तो 29 जो है हरूफ, उनको निकालने के लिए थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हम कितने हिस्से इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म के और वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? हमारे जिस्म के 5 हिस्से हैं, 5 हिस्से, और वो 5 हिस्से जो हैं उनको अदा करने के लिए, यानी कि उन 5 हिस्सों से हरूफ को अदा करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम कौन-सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी मैंने आपकी इंशाअल्लाह ताला बी बेयर विद मी, मैं आपको एक वो भी दिखाने लगी हूँ, मैं आपको सामने नज़र आ जाए शायद। तो आप बहनें अल्हम्दुलिल्लाह तैयार रहें। हर बहन ने अपने नोट्स बनाने हैं अपने लिए, कि बार-बार जब आप नोट्स बनाएँगे, बाद में बनाने हैं जब आप कर रहे होंगे, इसको सुन रहे होंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला। सुनने के लिए आपने अपने अच्छी तरह नोट्स बनाएँ और उसमें देखें कि आप क्या कर सकते हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक माशाल्लाह बहुत अच्छी तस्वीर है। किताब में तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आप देखेंगे जितने हम इस्तेमाल करते हैं इससे जिस्म के, हमारे जिस्म में 5 ऐसी जगहें हैं जो कि इसके मेन मखारिज होते हैं, जहाँ मेन जगहें होती हैं जहाँ से 29 हरूफ निकलते हैं, 5 जगह हैं। सारा जिस्म हमारा इस्तेमाल नहीं होता तजवीद के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, या कोई भी दुनिया की ज़ुबान बोलने के लिए हम कभी पूरा जिस्म इस्तेमाल नहीं करते। जिस्म के यही हिस्से हैं जो हर ज़ुबान बोलने के लिए अदा यानी इस्तेमाल होते हैं। इन 5 हिस्सों में 17 जगह ऐसी हैं, 17 इसके सब मखरज हैं, जिनसे फिर 29 हरूफ निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 जगहें कौन-सी हैं। हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले अल-जौफ़ हमारा आता है, तो अल-जौफ़ के जो हरूफ होते हैं, अल-जौफ़ कहते हैं मुँह और गले के खला को। मुँह और गला, थ्रोट जो आपका होता है उसके हल्के खला को कहते हैं, खाली हिस्से को, क्योंकि ये इनको हरूफ़े हवाइयत है। यानी हवा की तरह, जैसे हवा बाहर आती है ऐसे ये भी बाहर आ जाते हैं। तो ये इनका कोई मखरज टच नहीं करती किसी जगह से भी, ये सिर्फ हवा के साथ खाली हिस्से से जाए। ये देखिए आप 3 लाइन में देख रहे हैं, ये खाली हिस्सा है मुंह का, और ऐसे ही पीछे गले में भी ये जहाँ जाहिर है कि आवाज इधर से जाती शुरू होती है और आगे की तरफ जाती है मुंह की तरफ,
तो इसमें से हम अब इनको डिवाइड करते हैं हरूफ तहज्जी का। हम सबको पता है, हम बच्चे नहीं है, शुरू नहीं कर रहे बिल्कुल शुरू से। तो हमारी टाइम भी हमने क्लास का बहुत कम है हमारे पास कि हमने इसको कवर करना है इंशाल्लाह ताला, इसलिए मैं बहुत कुछ स्किप करके आपको बता रही हूँ। तो अलजौफ जो है मुंह का खाली हिस्सा, हमारी उर्दू में इसको कहते हैं मुंह का खाली हिस्सा, मुंह का खलाओ। एंड इससे हरूफे मद्दा अदा होते हैं। 3 हर्फ हैं ये, अलिफ, अलिफ मदिया इसको कहते हैं, वाव मदिया और या मदिया। ये एक खास हालत में होते हैं, ये वाव मदिया और या मदिया जब यहाँ से आ रहे होते हैं, वरना इनका अपना मखरज है, इनके रहने के, इनका घर अपना है एक हर एक का। लेकिन कहाँ से ये अदा होते हैं, जब इनके ऊपर यानी कि जज्म हो वाव के ऊपर, या के ऊपर जज्म हो, और अलिफ खाली होता है। तो वो अलिफ खाली जो होता है, असल में कहा जाता है कि उसके ऊपर जज्म ही होती है, लेकिन हमें वो खाली ही नजर आ रहा होता है। तो वो अलिफ खाली जो है वो वहां से अदा हो रहा होता है, जब उसके ऊपर कुछ ना हो। ठीक है। तो दूसरा ये था अल जौफ, अल जौफ मुंह का खाली हिस्सा। दूसरा हम लेते हैं इसको हल्क, अल हल्क। अल हल्क क्या है? हमारा हम कहते हैं गला, हम गला कहते हैं और इंग्लिश में थ्रोट कहते हैं इसको। तो ये ये जो जगह है, ये देखें इधर, ये इस्तेमाल होती है 6 हरूफ अदा करने के लिए। 6 हरूफ कौन से हैं? हमजा, मैं हमेशा जहां से शुरू करती हूँ, और बहुत आसानी के साथ आप इनको फिर याद रख सकते हैं। हमजा, हा, आपने अगर गर्दन के ऊपर आप अपना ऐसे हाथ जरा नीचे रखें, हा, हमजा, हा, फिर आप दरमियान में आ जाएं, वो आइन, हा, अंदर, फिर वो उसके ऊपर आखिर में, जहाँ पे हलक के आखिर में, तो वहां पे क्या है? गाइन और खा। अब मैं बताऊंगी नहीं इस वक्त के ये किस तरह निकल रहे हैं, और ये वो इनकी हालतें क्या है, इनकी कैफियत क्या है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि निकलते कहाँ से है। ठीक है, कौन कौन से हरूफ हैं ये, क्योंकि 17 जगह हैं, इन्हीं 5 जगहों में ये इससे कुछ निकलता नहीं है। इंशाल्लाह मैं अभी आती हूँ इसकी तरफ, इससे कुछ कोई हर्फ निकलता नहीं है, बल्कि एक आवाज है जो इसकी तरफ जाती है, और एक आवाज की गूंज के उधर को जाती है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हल्क जो है हमारा, इसमें 6 लेटर्स आ जाते हैं जिनको हरूफ हल्किया कहा जाता है, हरूफ हल्किया। तो हल्क के बाद हम लेंगे शफतान। जो शफतान है, शफतान कहते हैं, शफतुन कहते हैं एक होंठ को, और शफतान 2 होंठ। तो 2 होंठ जो है वो इस्तेमाल कब होती है और किन हरूफ के लिए इस्तेमाल होती है? शफातान में 2 मखरज है, यानी 2 डिफरेंट है। ये ग्रुप 2 है। तो एक ग्रुप में तो सिर्फ है, पहले मैं बड़े ग्रुप की बात करती हूँ जिसमें है वाव, वाव। तो ये होंठ को बिल्कुल, दोनों होंठों को गोल करके आगे आप सर्कल की तरह बना लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो वाव अदा होती है। तो फिर है बा, बा, ये गीला हिस्सा इस्तेमाल होता है। मीम, मीम, ये खुश्क हिस्से से, होंठों दोनों मिलाने से खुश्क हिस्से से अदा होते हैं, ये भी मिलाने से होते हैं। ये 3 हो गए एक ग्रुप में। ठीक है, इनके लिए दोनों होंठ इस्तेमाल हो रहे हैं। फा जो है ये अपना ही इसका एक ग्रुप है, क्योंकि ये फा, ये दोनों होंठों से अदा नहीं होती। इसका ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले 2 दांत हैं, उनका सिरा, और नीचे वाला जो हमारा होंठ है उसका अंदरूनी हिस्सा, वहां पे जाके वो 2 दांत लगते हैं, सिरा उनका, वहां पे, वहां से अदा होती है
ये कितने हरूफ हुए कुल 4। ये वाव जो होगी ये गैर मदिया होगी। ये देखिए यहाँ वाव डबल आ रही है ना, इधर भी आ रही है, तो गिनती इनकी बढ़ जाती है अगर ये इन को भी डाला जाए तो। लेकिन ये वाव जो है ये गैर मदिया होगी, इसके ऊपर जज्म नहीं होगी, ठीक है। ये वाव जज्म के साथ नहीं होगी, किसी हरकत के साथ होगी, अपने असल मखरज से निकल रही है। असल मखरज क्या है यहाँ पे। अब हम आते हैं जुबान की तरफ। जुबान जो है ये बहुत बड़ा, यानी कि जुबान में जहाँ पे हमारे टीथ भी इसी के साथ ही आती हैं, और जो पीछे हल्क का पिछला हिस्सा है, सॉरी हलक का नहीं, जो हमारा लिहाज है तो उसका पीछे हम कहते हैं नरम तालू जो है वो, और जुबान की जाड़ भी, हम जुबान पूरी की पूरी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ऊपर वाले पूरे दांत पूरे के पूरे इस्तेमाल होते हैं, जो कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तजवीद के लिए पूरे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इन हरूफ को निकालने के लिए। ये बहुत सारे कहते लोगों के घर हैं, जुबान और दांत बहुत सारे लोगों के घर कह दे ना अगर आप, तो समझ आ जाएगी। एक कॉलोनी कह दे इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे एक कॉलोनी की शक्ल में ये जुबान जो है इस्तेमाल होती है। जुबान के भी फिर हिस्से किए जाते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन इस वक्त हम ये लें कि हमारी जुबान बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है हमारी तजवीद में, हमारे हरूफ कहने में मददगार है। तो इंशाल्लाह ताला जुबान से फिर बहुत सारे हरूफ निकलते हैं। इनके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से हर्फ हैं जो जुबान से निकलते हैं। जहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा लिहाज होता है उससे काफ, हमारा काफ और कैफ है, और फिर आगे तालु जो है और जुबान का दरमियान है, इससे हमारा जीम शीन और या अदा हो रहा होता है। और ऊपर वाले 5 दाढ़ें जो हैं ऊपर वाली, उनका गम एरिया, और हमारी जुबान की जहाँ से जो हिस्सा है जुबान का, जहाँ से जहाँ तक नहीं, जहाँ से क्योंकि जितनी जुबान नजर आ रही होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऊपर उठ के इधर लग रही होती है। जो बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती उसको हम कह नहीं सकते कहाँ लग रही है ना, क्योंकि हमें नजर नहीं आ रही होती हम कर तो इंशाल्लाह ताला। दांत जो है हमारी 5 दाने इस्तेमाल होती हैं दौद के लिए, और जुबान की करवट जो है एक साइड, दोनों साइड भी कोई कोई लगा सकते हैं, लेकिन एक साइड राइट या लेफ्ट लगा सकते हैं आप। कहा जाता है कि जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है वो काम ज्यादा लेफ्ट हैंडेड से करता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली लेफ्ट की तरफ जुबान जो है दांतों से, लेफ्ट दांतों से लग रही होती है जुबान की साइड। और जो राइट हैंडेड होता है वो ज्यादातर ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो जिस्म के अज़ा उसके उसी की तरफ वो ब्रेन दे रहा होता है ना, इशारा के उठ रहे होते हैं, तो वो उधर से। तो इंशाल्लाह ताला ये जुबान के आगे वाले फिर और भी जहाँ पे हमारे लाम और बात भी है, लाम भी बाद के मखरज के बाद लाम है, लाम के मखरज के बाद नून है, और नून के बाद रा है, और फिर हमारे दांतों का गम एरिया, और फिर हमारी जुबान की टिप आ जाती है, और ये सारे फिर काफी हरूफ जहाँ से सीन जा सौद, और जहाँ ऊपर से जो गम एरिया है वहां से निकलते हैं दाल एंड ता एंड जो हमारी होती है द, और दाल ये ता, दाल और दा, ये निकल रहे होते हैं ऊपर के 2 दांतों की टिप और हमारी जुबान की टिप, यानी कि एज जो है सिरा किनारा, जुबान का किनारा ऊपर के 2 दांतों के किनारे से लगता है, तो ये अदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका आप सबको अब थोड़ा सा अंदाजा हो गया है इंशाल्लाह ताला। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका यही है कि जब हम बार बार इसको देखते हैं, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका पता चल जाता है इंशाल्लाह ताला। ये
अभी मैं आपको वही पुरानी तस्वीर की तरफ ले जाती हूँ। आज हमारा इनको तस्वीर के साथ में क्यों दिखा रही हूँ और क्यों इसके ऊपर टाइम लगा रही हूँ, ताकि जब हम कायदे की तरफ जाए ना, तो हम सबको वो तस्वीर जो है इनकी ना, कहाँ कहाँ से निकलते हैं वो हमारे दिमाग में हो के ये कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए वरना आज का टाइम में फौरन ही कायदे के ऊपर जाती और आपको बता देती इंशाल्लाह ताला। तो आपके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है, जहाँ पे ये देखें एग्जैक्ट आपको वो तस्वीर बड़ी नजर आ रही है, तो ये देखें ये खाली हिस्सा है मुंह का, जैसे वाओ अलिफ और याद हो रहे हैं। मैं बहुत सही टाइम नहीं और लगाऊंगी। हल्क जो है हमारा जहाँ से अक्सा हल्क है, बिल्कुल दूर का किनारा, अक्सा का दूर के किनारे को कहते हैं, दूर को। तो ये हा और हमजा, हमजा हा देखे बिल्कुल इधर से अदा हो रहा है। और उसके बाद है फिर हमारा वस्ती हल्क, ये बिल्कुल यहाँ से हा और आइन, ठीक है। ये देखिए निकलने की जगह आपको बड़ी आप नजर आ गई है तस्वीर में, तस्वीरें ही दिखा रही हूँ मैं, बहुत इसका बता नहीं रही अब अभी। तो खा और गाइन कहाँ से है, जहाँ से वो निकले थे, जहाँ से खान गाइन है, ये बिल्कुल आखिर है इसका, क्योंकि जहाँ से लिहाज शुरू हो जाता है नरम तालु, वो फिर हमारा काफ और काफ के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर हमारा आता है आगे, ये देखिए ये वही हिस्सा है जो उधर ग्रीन था, लाइट ग्रीन था, जहाँ पे ये काफ नरम तालु है। और देखिए जहाँ पे जिसको हम कौवा कहते हैं, ये हाथ, और ये हिस्सा जुबान का ऊपर उठता है और जाके कहाँ लगता है, नरम तालु से काफ अदा होता है। ये एक सेकंड के लिए इसको बंद कर देता है मखरज को। ये देखिए जुबान कैसे लगी हुई है उसके साथ, वो कहाँ जगह होगी कि वहां से कुछ निकल सके, इसीलिए इसको फिर हटाने से ही इसकी आवाज आती है, ठीक है। ये काफ जो है उससे पीछे हट के जरा इधर मुंह की तरफ, जहां से सख्त तालु शुरू हो जाता है वहां पे लगती है जाके जुबान। तो काफ काफ काफ, कैसे पता चले, अलिफ देख के उसके ऊपर जबर लगा दे, और जो भी हर्फ आप मालूम करना चाहते हैं उसका मखरज, उसके ऊपर जजम लगा दे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये दरमियानी हिस्सा है, इसको अलहदा अलहदा इनको देख लेते हैं। यहाँ पे या है, ये कितने, ये एक जोड़ा है, ये देखें 3 हरूफ का जोड़ा है। तो इससे या बिल्कुल ये दरमियानी हिस्सा है जुबान का, और दरमियानी हिस्सा तालु का है, ठीक है। या है, देखिए ऐसे उठती है जुबान, बिल्कुल नजदीक आ जाती है तालु के दरमियानी हिस्से के, लेकिन लगती नहीं है जाके या के लिए। शीन के लिए या से ज्यादा लगती है जुबान, ठीक है। शीन के लिए देखो ये जुबान का जहाँ पे ये दरमियान ही है जुबान तालु का सारा, तो देखिए जुबान का ये हिस्सा दरमियानी हिस्सा ही है अभी, लेकिन उससे जरा हट के है। तो शीन के लिए और भी ज्यादा ऊपर उठती है, लेकिन लगती वहां पे भी नहीं, बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। तो तालु दरमियानी तालु से फिर आती है हमारी जीम। तो जीम जो है, जीम के लिए जो देखो जीम अज, अज, ये देखो यहाँ पे जाके लगा हुआ है। तो ये भी काफ की तरह वहां पे अज, ये जुड़ जाता है और आपकी आवाज बाहर नहीं आती जब तक परे ना हटाए। तो इसको हम बाद में देखेंगे। दौद है, ये देखिए दौद, यहाँ पे ये आपका ये आपका हिस्सा है जुबान का साइड, पांच पांच दाढ़ों के गम एरिया से लग, 5 दाढ़ों की प्लेटों से लगती है जाके। लाम है, लाम जहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती होती है जब जिस्म के साथ आ रहा होता है, तो ज्यादा गलती के इम्कान होते हैं कि ये बाहर आ जाए। इसीलिए मैं आपको तस्वीर के साथ दिखा रही हूँ कि जहाँ पे, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं होंगी जब मैं आपको कायदा पढ़ा रही होंगी, तो इसलिए मैं आपको ये
पहले ही दिखा रही हूँ, जहाँ पे जुबान जाके ठहरती है और जज्म के लिए लाम जब जज्म वाला होता है, जा नून जज्म वाला होता है, जा यानी कि हर्फ रा जज्म वाला होता है, तो इनके मखरज पर जुबान इस तरह इस सूरत में रहती है, ठीक है, लगी रहती है, ठीक है। लाम अल अन, आप कह के देखें, अगर आप कहें अल, अब मैंने अपनी जुबान हटा दी वहां से, ये जुबान का हिस्सा हट गया, जुबान का आगे वाला किनारा, अन अन से भी हट गया, जहाँ पे अल अल जहाँ पे जुबान लगी रहेगी, ये बहुत ख्याल रखना, अपने जहनों में ये बात बैठा देनी है। बहुत सारे लाम जैसे वाले आते हैं कुरान में और बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो ये आपका सबसे पहले मैंने बता दिया है कि आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे नून का मखरज कहाँ गया, लाम, और रा, जहाँ पे रा है नून भी उधर से ही, लाम के लिए 8 दांत है और नून के लिए 6 दांत होंगे, ऐसे ही गामेरिया से जहाँ पे मैंने बताया आपको लाम के लिए उधर ही लगती है, लेकिन उसके लिए 6 होते हैं। तो फिर आगे रा आ जाती है, रा के लिए 4 ऊपर वाले थोड़े दांत होते हैं, जैसे 4 से दांत जहाँ पे होता है ना जुबान का हिस्सा सारा, और ऊपर वाला थोड़ा सा जुबान की पुश्त भी लगती है, ठीक है, जहाँ पे देखो जुबान की पुश्त भी थोड़ी सी लग रही होती है, और पर थोड़ा सा तकरार हो रहा, अर अर करते रहे तो ये गलत होगी, ठीक है। तो अर 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 ऐसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी जुबान यहाँ पे ही रहेगी, ठीक है, जब जज्म वाली रा आएगी, जज्म वाले पे ज्यादा गलती होती है। रा जब भी कोई हर्फ जो हरकत वाला होता है, जबर जेर पेश वाला, उस पे इतने इम्कानात नहीं होते जितने जज्म वाला निकालने पे होते हैं। तो इसलिए अब हमारा आ जाता है नाक, खुशबू, नाक। अब नाक के लिए अलहदा नून क्यों उन्होंने दिया है, क्योंकि नून की आवाज जो है जब छद के साथ होता है, नून वैसे भी नून में गुन्ना पाया जाता है, नून और मीम में ऑटोमेटिक गुन्ना पाया जाता है, मीम नून, नून के लिए खासकर वो आवाज आ रही होती है हमारे नाक से, अकेला नून कहने से भी आवाज आती है, तो यहाँ पे नून, और अब आप देखो कैसे पीछे से आ रही होती है और बाहर किधर निकली है, क्योंकि जहाँ पे हमने बंद कर दी है ना जुबान का आगे वाला किनारा जो है, ये किनारा जुबान का किनारा आगे वाली 6 दांतों के जहाँ पे लग गया आगे गम एरिया पे, वो बंद हो गया एरिया, जहाँ पे ना हवा निकल रही है ना आवाज निकल रही है। तो अब क्या हुआ कि हमारी हवा और आवाज ने अपने रुख बदला और वो नाक के रास्ते बाहर आ गई, ठीक है, यहाँ पे, इसीलिए इसको गुन्ना कहते हैं। इससे हर्फ को ही नहीं अदा होता कि ये किसी हर्फ का मखरज नहीं है, ये गुन्ने के निकलने का रास्ता है, निकलने का रास्ता, क्योंकि मखरज भी खराजा होता है ना, खराजा खराजा होता है निकलने की जगह, एग्जिट, किसी जगह से एग्जिट लेना, जैसे हम घर का दरवाजा रखते हैं तो हम कहते हैं दरवाजे से बाहर निकलना, इस हर हर्फ का एक घर होता है और उसका फिर एग्जिट पॉइंट होता है, जहां से यानी उसका दरवाजा होता है, कहाँ से उसने बाहर निकलना है, जहाँ अंदर जाना है। तो ये फिर जगह जो है इनका मालूम करना जरूरी है, असल घर कौन सा है, किस लेटर का क्या घर है, कहाँ से उसने निकलना है, इंशाल्लाह ताला ये हमारा मुखारजुल हरूफ, ये देखे ता में आता है। अब आगे हमारी बिल्कुल टिप ऑफ द टंग, जो जुबान का आगे वाला हिस्सा है, ये यहाँ पे जो लग रहा होता है, ये ता और दाल, अत, जहाँ पे अत के बंद कर दिया और ता के लिए छोड़ेंगे तो फिर आवाज आएगी जज्म वाली ता की, अद अद, जहाँ पे लिए छोड़ेंगे तो फिर आगे ये जो है, ये इसके ऊपर कलकला नहीं होता, इसकी एक सिफत है कि इसको आखिर में एंड पे परे हटाना पड़ता है ताकि आवाज बाहर निकल सके। ताल पे जब जज्म आए तो थोड़ी सी बॉन्सी आवाज आ जाती है, बॉन्सी साउंड हो जाती है, जैसे वापस पलटती है आवाज,
यहाँ पे अद अद, देखिए ये दाल आ गया, सॉरी दाल का मिलकारी, जहाँ पे अद भी वहीं से ही है, क्योंकि ये एक पूरा सेट है, ठीक है। ये नेबर्स है, ये एक जगह से ही एक घर में ही रहते हैं, ठीक है, एक घर में ही रहने वाले एक शख्स ले ले, एक घर में रहने वाले लोग हैं। तो ये तीन है, तीन लोग रहते हैं इस घर में, ये जो घर है इनका तीन रहते हैं इसमें। लेकिन तीनों की सिफात और आवाज मुख्तलिफ है। जैसे घर में बच्चे हैं, लोग हैं, तो हर एक की सिफात भी मुख्तलिफ होती है। कोई बहुत क्वाइट है, कोई बहुत बोलने वाला है मेरे जैसा, कोई बहुत यानी कि गुस्से वाला है। तो ये सिफात है उनकी बहुत होती, साथ में क्वालिटीज भी मुख्तलिफ होती हैं। हर बच्चा मुख्तलिफ होता है, उसके अपने आदात होती हैं, उसके अपने आदाब होते हैं, उसके अपने ख्यालात होते हैं। तो इस तरह ये भी ये मुख्तलिफ है, बेशक घर एक में ही रहते हैं लेकिन मुख्तलिफ है, ठीक है, इनकी आवाजें और इनके जो आ रही होती है, अब हवा भी बाहर और सब। अब आ जाता है दूसरा एक और जोड़ा, जो कि इससे आगे बढ़कर दांतों का एज और जुबान का किनारा, बिल्कुल सा दाल। ये बड़ी बड़ी तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, ठीक है। दांत ऊपर वाले, और ये देखो टिप ऑफ द टंग टचेस द एज ऑफ टू अपर टीथ, यानी कि दो ऊपर वाले दांतों का किनारे से लगती है जुबान का किनारा। तो सा सा अस, अस, ये इसकी सिफत है कि इसकी से हवा भी इधर से बाहर आ रही है थोड़ी। दाल अज अज, दाल दाल, ये देखिए बिल्कुल उधर से लग रही है, लेकिन इसमें गलती जाल क्यों कहते हैं, जाल। ये यहाँ पे नीचे वाले दो दांतों के नीचे वाले दांतों के पीछे जाके जुबान लगा रहे होते हैं, जो कि जा यानी जाए जो है, जा का मखरज होता है, जा सीन और स्वाद का मखरज वो है, उधर चले जाते हैं। ये गलती बहुत लोग, जालिकल किताबु, और वो कहते हैं जालिकल किताब, जहाँ पे गलती होती है, इसको ठीक करें। जा और दाल, इसमें जा कह देते हैं, जे पढ़ देते हैं। तो ये अगर जा कह देते हैं इसको, तो नीचे वो सीन स्वाद और जा की जगह पे ले जाते हैं इसको। फिर ये आ जाते हैं जिनकी जगह का मैं बता रही थी कि ये नीचे है, ये नीचे वाले दांतों के पीछे पे, बिल्कुल ऊपर वाले दांत भी नीचे आए होते हैं लेकिन जुड़े नहीं होते, बिल्कुल करीब ही आ जाते हैं। तो आज इनमें सीटी पाई जाती है, आज अस अस अस, ये बदल जाता है। ये याद रखें कि कोई भी मोटा हर्फ जो है, मैं बताऊंगी ये मोटा हर्फ है, तो जब भी कोई मोटा हर्फ पढ़ा जाता है उसके लिए होंठ गोल नहीं होते। ये हरूफ शफिया आगे, ये देखिए फा 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 बिल्कुल होंठों के अंदरूनी हिस्से से लग रहा है, ऊपर के दांत एज उनकी। आ अफ, अफ कहेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, अफ। यहाँ पे मीम है, मीम, मीम के लिए हमें पता है कि खुश्क हिस्सा दोनों होंठों का खुश्क हिस्से से जब वो जोड़ते हैं एक दूसरे से, खुदा होता, बहुत सख्ती से नहीं जोड़ते, बहुत नरमी से जोड़ते हैं, बा बा, थोड़ा सा उससे ज्यादा सख्ती से जोड़ता है बा, लेकिन ये गीले हिस्सा जोड़ता है, जैसे यहाँ। और वाओ, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, जब खासकर ये पेश के साथ आ रहे होते हैं। ये शक्ल हमारी असल, सीधे मैंने शक्ल दिखानी मकसूद थी, ये देखें ऐसे हमारे होंठों को होना चाहिए पेश के लिए। और जब हम वाओ, क्योंकि इसका मखरज ये है, वाह, पहले हम होंठ गोल करते हैं, फिर कहना शुरू करते हैं वाओ को, वाओ वाओ बोलते हैं और फिर वापस ले जाते हैं, वाओ। तो वाओ जो है, जैसे हम ऊ, वाओ जज्म वाली से पहले पेश लगा देंगे अलिफ के ऊपर, तो ऊ ऊ, इसके लिए काफी होंठ बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल यही ये जो होता है, इससे आवाज बाहर आ रही होती है। अगर आपके होंठ गोल नहीं हुए हुए, थोड़े से बाहर नहीं निकले हुए, तो समझ लें कि ये गलत है मखरज। तो इंशाल्लाह ताला बस ये आज मैंने यही करना था, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलता
कि क्या कहते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा मैं पूछती हूँ इंशाअल्लाह ताला। आज सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बार-बार रिकॉर्डिंग सुने, अल्लाह करे कि मैं बता सकूँ आप लोगों को और इसको सुने और अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके सामने तस्वीर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आ जाएगी। ना हुआ तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आप इनको बार-बार देखें कि कहाँ से शीशे के आगे खड़े हों और आप अपने मखारिज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको खुद को पता चल जाएगा। ऊँची आवाज़ में बोल के करें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पे अकेले हों आप, जब अकेले हों तो तब ऊँची आवाज़ में करें, आपको इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाअल्लाह ताला